screen right now coming in from outside Sharad Pawar's residence, where we can see several of the opposition coming out of Sharad Pawar's residence. This is the Rashtra Manch meeting that was held at Pawar's residence and house in the national capital. And we saw how of these guests were invited and the leaders were also invited from across political and other spectrums as well. Let me go across to my colleague Piyush, who's now joining us live from outside Sharad Pawar's residence. Piyush, over to you. We can confirm to our viewers that this meeting of Rashtra Manch has now come to an end. We are showing you the pictures of these leaders who are standing right here in the residence of Sharad Pawar. You can see Sanjay Jha, former Congress leader. He is holding deliberations with Majid Memon, who is also NCP leader. Sudhindra Kulkarni could be seen. Ghanshyam Tiwari, he had come out. He has now gone inside. We also saw Javed Akhtar coming out. Aam Aadmi Party MP, even he is here. Ghanshyam Tiwari could once again be seen. Pawan Verma, whom we spoke and who also ruled out that Third Front could defeat BJP, even he is here. So this meeting has officially come to an end. Any minute from now, we can also expect a press conference coming in from these leaders. Either of them could come out. And Yashwant Sinha is now coming out. He could address the press conference. We are continuously showing you the live pictures of these leaders who are now coming out. We can now officially confirm that yes, this meeting has come to an end. Yashwant Sinha, Pawan Verma, Majid Memon, Ghanshyam Tiwari, they all are present inside the residence of Sharad Pawar. We also heard what Majid Memon said. He said that it's important to have a formidable post, because we have seen as to how there are some issues, challenges which the country is facing. Interestingly, as of now, Sharad Pawar has not come out. He continues to be inside his residence. These leaders who are from Rashtra Manch, they are standing here in a queue. Sharad Pawar could also be seen. He has come out. Sharad Pawar could also be seen. Ujjwal can focus. Sharad Pawar is also coming out along with Supriya Sule. So it's going to be a big political development when they come out and address the press conference. Now Sharad Pawar is also standing there. So the meeting has officially come to an end. Any minute from now, we can expect a word coming in from either of them. We can expect Yashwant Sinha. Yashwant Sinha is most likely to address the press conference. Right now, they are standing here for a photo op. We can clearly see the leaders standing here, including Sanjay Jha, Aam Aadmi Party MP, Majid Memon is also there. Yashwant Sinha is there. Sharad Pawar could be seen. Pawan Verma is there. Ghanshyam Tiwari, former spokesperson of Samajwadi Party, he is standing there. Supriya Sule, who is also an NCP leader and daughter of Sharad Pawar, she is standing there, and they could come out and they could come here and address the press conference. We are also waiting for a word from them. We know as to how Majid Memon had spoke for a few minutes inside the meeting. We have also accessed that particular meeting. We are waiting for official word from either of them, so that we can understand the main agenda of this meet. Though they claim that it was now it's confirmed Sharad Pawar is not going to address. Most likely it will be Yashwant Sinha who will be addressing the press conference. He is the one who is leading the Rashtra Manch. Now he is coming here. Any minute from now, he could be addressing the press conference. He is holding last minute talks with the other members of Rashtra Manch. Ghanshyam Tiwari is also part of that meet. Majid Memon and Pawan Verma, Yashwant Sinha, they are right now having last minute talks. So now Yashwant Sinha moving ahead to address the press conference. We will be hearing what he says. But yes, meeting has officially come. Now Yashwant Sinha coming here to address the press conference. So let's hear what Yashwant Sinha says. इस टेबल को थोड़ा सेंटर में करवाइए। ये तो सेंटर में हो जाएगा। चेयर लेकिन हो जाएगा। सर चेयर मंगवा ठीक है, यहाँ से बोलते हैं सर। इतने नीचे माइक लगाओ ना, वहाँ पे बैठ के चेयर लगवाओ। ये चेयर लगवाओ, टेबल को थोड़ा सेंटर में करवाइए। ये तो सेंटर में हो जाएगा। चेयर लेकिन हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ से बोलते हैं। क्या करता है चेयर से हो जाए। सर आगे आ जाए थोड़ा। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। कैसे होगा यार? आप लोग बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं और आपने जैसा देखा कि हम लोगों की मीटिंग लगभग 2.5 घंटे चली। राष्ट्रमंच की ये मीटिंग 2.5 घंटे चली और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या तय हुआ, इसके बारे में विस्तार से आपको हमारे 2 साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, 3 साथी, मजीद साहब, घनश्याम तिवारी और पवन वर्मा। पवन, ये 3 लोग विस्तार से आपको ब्रीफ करेंगे जो 2.5 घंटे का डिस्कशन हम लोगों का हुआ उसके बारे में। और इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, सारी बात बताई जाएगी और सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल का सर, बस सर एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। नहीं, हम अभी पूछेंगे। ठीक है तो क्या सर आगे कर लीजिए कुर्सी। देखिए, सबसे पहले तो एक बात का खुलासा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया में पिछले 24 घंटों से जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या इवन प्रिंट मीडिया हो, कि ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई है। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया था। दूसरी बात, ये प्रचार हो रहा है कि ये एक राजनीतिक बड़ा कदम उठाया जा रहा है शरद पवार साहब के ज़रिए और जिसमें कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया गया है। ये बात भी गलत है। न तो राजनीतिक दृष्टि से कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई एक्सक्लूजन हुआ है। हमने उन मेंबरों को बुलाया है जो उस किस्म के हमारी आइडियोलॉजी जो है राष्ट्रमंच की, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो जिसमें सभी राजनीतिक पक्षों के लोग आ सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था। तीसरी बात, ये भी खुलासा आवश्यक है, कांग्रेस के भी मेंबरों को इसमें निमंत्रण मैंने खुद दिया है। मैं 5 कांग्रेस के एमपी के नाम दे सकता हूं, जिनमें विवेक तनखा जी, मनीष तिवारी जी, कपिल सिब्बल जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। मगर कुछ लोगों की तो जेन्युइन डिफ़िकल्टी उन्होंने हमसे कही कि भाई मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मगर हमें आप अपने साथ समझिए। इस तरह के हमें मैसेजेस आए हैं। तो ये कोई कांग्रेस का बाइकॉट या कांग्रेस को अलग रखने के लिए एक कोई बड़ा गठबंधन बन रहा है, इस तरह का विचार जो चल रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। अब आज की सभा में विशेष तौर पर आज की ये एक मंच का जो आइडियोलॉजी है और मंच का जो कार्यक्रम है, उसके तहत ये तय हुआ है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल वातावरण जो आज देश में बना है, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए राष्ट्रमंच का क्या रोल होगा, इस पर सुझाव सबको सुना गया। और इसमें अच्छे नॉन पॉलिटिकल लोग भी रहे जिनको सुना गया। जावेद साहब ने अपनी बात रखी, जावेद अख्तर साहब ने,
और जस्टिस AP शाह साहब ने भी अपनी बात रखी। तो ये कोई एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था जिसको गलत तरीके से प्रचार करना सही नहीं होगा, नाइंसाफ़ी होगी। अब वो इस मुद्दे में किसने क्या कहा और अल्टीमेटली क्या तय हुआ, ये हमारे साथी समाजवादी पार्टी के हमारे स्पोक्सपर्सन और हमारे फाउंडर मेंबर घनश्याम जी बताएंगे। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोगों ने इतने समय तक इस चर्चा का आप लोग हिस्सा रहे। हालांकि चर्चा अंदर हो रही थी, लेकिन चर्चा के विषय में चर्चा पूरे देश में हो रही थी और इसमें आप सब लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रमंच की ये प्रथम बैठक है जिसमें सभी साथी जो आ सके, जो सदस्य पहले भी आते रहे हैं, पार्टियों के दायरे से ऊपर उठ करके राष्ट्र के मुद्दों पर अपनी सोच रखने वाले, पब्लिक लाइफ में एक ऊंची स्टैंडिंग रखने वाले, ऐसे सभी लोग राष्ट्रमंच का हिस्सा रहे हैं। तो आज जो चर्चाएं हुई, सबसे पहले मैं उसका निचोड़ बताना चाहता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ है उसका वो ये है कि इस देश में बेहद आवश्यक है कि एक ऑल्टरनेट विजन तैयार किया जाए, ऐसी सोच तैयार की जाए जो वाकई इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर, जिससे देश का आम नागरिक जुड़ा रहता है और जिससे वो आगे बढ़ने की सोच सकता है, उन मुद्दों पर वो सोच बुलंद हो। तो उस ऑल्टरनेट विजन के लिए राष्ट्रमंच ने अधिकृत किया है कि यशवंत सिन्हा जी, जो कि इसके मुख्य फाउंडर हैं, कन्वीनर हैं, वो एक टीम गठित करेंगे जो हर प्रकार के मुद्दे पर एक मजबूत विजन देश को देगा। इस विजन का हिस्सा देश के नागरिक होंगे, देश की सामाजिक संस्थाएं होंगी, राजनीतिक दल इस विजन का हिस्सा बनेंगे। और इस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि हमारे युवा देश में विजन का अकाल हो, और खासकर सिर्फ इसलिए अकाल हो जाए कि मौजूदा सरकार किसी विजन पर काम नहीं कर रही। तो एक पहला निचोड़ इसका ये है, उस विजन में तमाम चीज़ें होंगी। आप सभी लोग ग्राउंड पे कवर करते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसान के मुद्दे हों, देश की लोकतंत्र की व्यवस्था की बात हो, प्रेस की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, हर तरीके का सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हो, हर तरह के मुद्दे उस विजन का हिस्सा बनेंगे। और वो विजन इंक्लूसिव विजन होगा, वो एक पॉजिटिव विजन होगा, देश को आगे बढ़ाने वाला। वो एक कन्फ्रंटेशनल विजन की बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव विजन की बात है अगली पीढ़ी के लिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मजीद सर ने कहा भी, कि ये अहम है कि राष्ट्रमंच एक ऐसे मंच के रूप में रहे जो सबको सम्मिलित कर सके, जिसके पास भी राष्ट्र के निर्माण की जो भी महत्वपूर्ण सोच है, चाहे वो राजनीतिक दल है या अपने तरीके से काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठन है, स्कूल और कॉलेज से जुड़े हुए अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, या कॉलेजों में पढ़ने वाले वो बच्चे हैं जिनके पास अपने आने वाले भविष्य की चिंता भी है और अच्छे भारत की सोच भी है। राष्ट्रमंच उन सभी लोगों को सम्मिलित करेगा, उन लोगों को भी सम्मिलित करेगा जो देश के अंदर सोच रखते हैं, उन भारतीयों के लिए भी एक मंच प्रस्तुत करेगा जो देश के बाहर हैं लेकिन भारत के लिए एक बुलंद सोच रखते हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात आज राष्ट्रमंच ने तय की। मंच की चर्चाओं में यह भी सामने आया कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की लगातार ऊंची कीमतें देश के हर नागरिक को, खासकर किसानों को और मध्यम वर्ग को लगातार प्रताड़ित कर रही हैं। तो राष्ट्रमंच